Hello everyone, this is Deepa and I'm going to continue same chapter, chapter 5, History, When People Rebel, 1857 and after. In my previous video, I have explained that why this revolt is known as First War of Indian Independence and how due to the policies of the Britishers people suffer a lot and what are the causes for the revolt of 1857, and I have explained that what are the economic causes, religious and cultural causes, and military causes also, and what are the political causes behind it, and I focused on one of the immediate causes also, and I have explained it well. Now students, for your better understanding, I'll move towards the headings through the slides in the same series which are in the book. So we'll start from the book, same heading, that Nawab lose their powers and the peasants and the sepoys response to reforms. These are the topics on which we'll discuss in the present video. So these are the headlines. So let's see what happened. Policies and revolt. We looked at the policies of East India Company and the effect that had on different people. Kings, queens, peasants, landlord, tribal, soldiers were all affected in different ways. We have seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments also. So now I am going to explain it in Hindi. From the previous chapters we have learned what happened. जो भी पॉलिसीज़ और रिवोल्ट यानी जो नीतियाँ थी और जो लोगों के बीच में जो रिवोल्ट चल रहा था, जो भी लोगों के बीच में द्वंद्व था, लोग और नीतियाँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोग और नीतियाँ किस तरीके से चल रही थी और रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ। जितने भी लोग थे, ये ज़मींदार हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो राजा हो या रानी हो, या फिर हमारे जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, या फिर हमारे किसान हैं, वो सभी लोग इफ़ेक्टेड हो रहे थे। ऐसा नहीं था किसी एक पर प्रभाव पड़ रहा था। और जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी, जो भी नीतियाँ और कार्रवाइयाँ हो रही थी, जनता के हित में नहीं हो रही थी। ये बात क्या कर रही थी, उनकी भावनाओं को, दिस गोज़ अगेंस्ट सेंटिमेंट्स द पीपल्स, और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। उनका लोगों को किस तरीके से लोग विरोध कर रहे थे, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। Nawab lose their powers. Since the mid 18th century, Nawab and Rajas has gradually lost their power and authority. Their freedom reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away. The company adopted policies to end the Mughal dynasty, and this paved the way of British government to rule in India. इसमें कि किस तरीके से नवाबों की जो सत्ता थी वो छिनती चली जा रही थी, जो उनकी शक्तियाँ थी वो किस तरीके से रिड्यूस हो रही थी। 18 सेंचुरी के आसपास हमने देखा कि जो नवाब और राजा थे, उनकी जो सत्ता थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, उनका जो सम्मान था, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, फिनिश हो रही थी। और कई सारे राजा लोगों के दरबारों में क्या होने लगा था, रेजिमेंट वहाँ पर सेटल डाउन होती जा रही थी। और जो वहाँ के लोकल किंग्स थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, वो बहुत, उनकी इंडिपेंडेंस कम होती चली जा रही थी। उसके बाद जो उनकी जो सैनिक संगठन था, या फिर जो उनकी सेनाएं थी, वो भी रिड्यूस होती चली जा रही थी। और राजाओं के पास जो एक राइट था, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो धीरे धीरे वो राइट भी कम होते जा रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से हाई टैक्सेस लगा दिए, उसके बाद राजा ने अपने टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करवा पाया, तो किस तरीके से ज़मीनें जो हैं वो ऑक्शन कर दी गई, नीलाम कर दी गई, एंड द पीजेंट्स आर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस। एट दैट टाइम क्या हुआ कि जो वहाँ के लोकल राजा महाराजा लोग थे,
उन्होंने कई बारी नेगोशिएट भी किया, कंपनी के साथ कई बारी नेगोशिएशन भी की कि बातचीत करके उसको समझाया जा सके। तो उस नेगोशिएशन में एक नेम है जो कि रानी लक्ष्मीबाई का है। सो लेट्स सी। Many ruling families such as Rani Lakshmibai of Jhansi tried to negotiate with the company to protect their interests, but they did not get success. Now the company began to plan to bring an end to the Mughal dynasty. To make this plan successful, and the company took several measures. The names of Mughal kings was removed from the coins minted by the company. So now say it in Hindi. कि जो रानी लक्ष्मीबाई ने भी बातचीत की अपने ब्रिटिशर्स के साथ, और वो क्या चाहती थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उनका जो अडॉप्टेड सन है, जो गोद लिया हुआ बेटा है, उसको क्या किया जाए, राजा बना दिया जाए, राजा मान लिया जाए। और जो कि कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया और कंपनी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुई। उसके बाद कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमको क्या करना है, ब्रिंग एन एंड टू द मुगल डिनेस्टी। और फॉर दैट कंपनी हैज़ मेड सम प्लान्स एंड सक्सेसफुल द कंपनी टुक सेवरल मेजर्स। बहुत सारे मेजर्स इसमें लिए, उनमें कुछ ऐसे मेजर्स थे जैसे कि हम बोल सकते हैं उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस लगाया, और जो कि उन्होंने किस पे डाला, अवध पर ये सब्सिडरी अलायंस अप्लाई कर दिया। जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो जो अवध था वो सबसे लास्ट एक मतलब हम कह सकते हैं कि टेरिटरी थी जिसके जो कि 1801 में सब्सिडरी अलायंस जिस पर थोप दिया गया। उसके बाद और अंग्रेज़ों ने उसको अपने अंडर में ले लिया। गवर्नर जनरल जो कि डलहौजी थे, उन्होंने ये बोला कि जो भी ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अवध में, मिस गवर्नेंस है। ड्यू टू दिस मिस गवर्नेंस अवध नीडेड टू अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट शुड बी कम अंडर ब्रिटिश रूल। और ताकि ये ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर जब आ जाएगा तो इसका शासन कैसा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सही हो जाएगा, और ये ठीक से शासन की इस रियासत पर ठीक से शासन की ज़रूरत है। और जो पेशवा बाजीराव जो कि नाना साहब जो हैं, जो कि पेशवा बाजीराव के जो क्या थे, नाना साहब अडॉप्टेड सन थे। उन्होंने क्या किया कि कंपनी से ये डिमांड की कि जो उनके फादर को पेंशन मिल रही है वो उनकी डेथ के बाद किसको मिलने लगे, नाना साहब जी को मिलने लगे। और उस पर उन्होंने कंपनी उसे भी एग्री नहीं कर पाई, कंपनी ने वो भी हटा दिया। एंड आफ्टर दैट कंपनी ने वो जो भी सिक्के जो चलते थे, जो कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, जो मुगल किंग के नाम से जो सिक्के चले जाते थे, उसको भी कंपनी ने उन सिक्कों से राजा का वो नाम और उसकी इमेज हटा दी। क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे राजा की वजह से बिलोंग कर रही है। और उसके बाद मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया जब सिक्कों से, उसके बाद फिर उसने कंपनी ने अपना एक सिंबल वगैरह उस पर डाला। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये भी बोल दिया कि जो ये बहादुर शाह जफ़र जी हैं, इनकी डेथ के बाद कोई और न्यू जो होगा वो राजा भी नहीं माना जाएगा। सो लेट्स सी। In the countryside, peasant and zamindar resented the high tax and the rigid methods of revenue collection. बहुत लोग परेशान थे कि इतना जो रिजिड वे है इनका, जो बिल्कुल मतलब कठोर तरीका है हाई टैक्स लेने का और जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का, उससे कंट्री के पीजेंट्स और ज़मींदार बहुत परेशान थे। द इंडियन सिपॉइज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। और यहाँ पे जो हमारे इंडियन सिपॉइज थे वो अनहैप्पी थे, क्यों? ड्यू टू देयर पे, अलायंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज बहुत टफ करते जा रहे थे वो लोग। सम ऑफ द कंपनीज रूल इवन वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दस एवरीवेयर देयर स्प्रेड डिसकंटेनमेंट। क्या होने लगा, उसकी वजह से हर जगह लोगों के अंदर बहुत क्रोध, आक्रोश की लहर दौड़ गई एकदम से।
और कंपनी के जो रूल थे कई बार क्या करते थे, हमेशा मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाते थे। 1856 में जब गवर्नर जनरल कैनिंग आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र है ये हमारे मुग़ल बादशाह हैं, वो कैसे होंगे, लास्ट मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद कोई भी कंपनी में जो उनका जो भी डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि जो भी फोर्थ कमिंग जनरेशन होगी, जो वंशज होंगे, उनको राजा नहीं माना जाएगा, वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उनको केवल प्रिंस माना जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, they would not be recognized as kings. And after that, let's see what are the conditions of peasants and the sepoys, which we have seen here. They were facing discontentment and enraged. And after that, we'll talk about reforms and reaction of the peoples also. So here let's see responses to reforms. Whatever the reformation has done by Britishers, what was their response? How public dealt with that? The responses to the reforms brought in the Indian society by the British were also not positive, although some reforms were essential. The company passed laws to stop the practice of sati. English language education was promoted. Some Indians thought the British were destroying their religion and their social customs, while some wanted to change existing social practices. Gradually, people began to view the British as their common enemy, and therefore they rose up against this enemy at the same time. Students, here we can see कि जो भी रिफॉर्म्स किए गए उसका जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था, वॉज नॉट पॉजिटिव। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनसे। जबकि हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स जो थे कि बहुत एसेंशियल थे, जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सती प्रथा एंड वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वीडो रीमैरेजेस। तो इट शुड बी डन, इट इज़ गुड, but the people think they are just pointing out our old religions, old customs, and they are just deliberately trying to hurt us with the changes of religious customs, right students? द कंपनी पास लॉज टू स्टॉप द प्रैक्टिस सती, है ना, एक लॉ पास किया कंपनी ने जिससे क्या किया, उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया। एंड आफ्टर दैट वीडो रीमैरिजेस एक्ट को वो लेकर के आए। एंड वन थिंग मोर दे हैव डन कि इंग्लिश एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। एंड आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियंस मिशनरीज टू फंक्शन freely in its domain and even own land and property। क्या करने लगे फिर, धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा वो बहुत प्रचलन में आ गए, वो उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, वो लोग फंक्शनिंग अपनी करने लगे, उनकी क्रियाकलापें चलने लगी। और उसके बाद 1850 में एक न्यू लॉ पास कर दिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, कि भाई आप अपना धर्म बदल लेंगे तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक उन्होंने लॉ पास किया था जिसमें कहा था कि इफ़ यू वांट टू टेक योर फादर्स प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू टेक मतलब यू वांट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर, इफ़ you will convert your religion, you become Christian, then you can take it easily. And if you're not ready to accept Christianity at that time, you will be not be able to inherit your father's property। इससे भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत परेशानी हुई, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। सम इंडियंस थॉट द ब्रिटिश वॉज डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन, उनको ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जानबूझ के उसको मतलब कि पलूट कर रहे हैं, एक तरीके से भंग करते जा रहे हैं हमारे प्योरिटी को, जो हमारे रिलीजन की प्योरिटी है उसको भंग करते चले जा रहे हैं।
उसके बाद while some wanted to change existing social practices, और वो चाह रहे थे कि हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस बनाना चाह रहे थे. दे वर थिंक ब्रिटिशर्स वर थिंकिंग कि वी ऑल आर अनएजुकेटेड, बिकॉज ऑफ दैट वी आर फॉलोइंग सच काइंड ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस. तो ये जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस है इनको चेंज होना चाहिए. ग्रेजुअली पीपल बिगेन टू व्यू द ब्रिटिश एज देयर कॉमन एनिमी. धीरे धीरे लोग उनको कॉमन एनिमी समझने लगे कि सबके लिए ये बहुत गलत है ना. मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द रिलीजन, देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑल्सो. देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस. कुछ ऐसे थे जैसे कि हम नाम ले सकते हैं उनका, राजा राम मोहन राय का, है ना. और जो लोग नहीं चाहते कि थे कि जो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो रहें, उनको वो लोग भी चेंज करना चाहते थे. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम कई लोगों का नाम ले सकते हैं. और ये जो रिफॉर्मर्स हैं और इनके जो रिफॉर्म्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में वी विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 7. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर. I have left some part, I think, in the peasant and the sepoys, कि जो कंडीशंस थी सिपोइस की और पीजेंट्स की, वो कितनी ज़्यादा रिजिड मेथड्स की वजह से प्रॉब्लम में आ गई थी. जो 1824 में सिपाही जो थे जितने भी, उनको कंपनी की ओर से एक चीज़ कहा गया कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल कि दैट यू हैव टू क्रॉस सी. और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, रेडी नहीं होते थे जल्दी से मूव करने के लिए. और फिर 1824 में उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती हमारे सैनिकों को बर्मा भेजा सी रूट को फॉलो करते हुए. और जब लोगों ने क्या किया, जब उसको लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दे रिफ्यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर एट दैट टाइम पर क्या हुआ, उन्होंने उनको बहुत सारे पनिशमेंट्स दिए. दे वर सिवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन. और ये इशू उस समय भी ख़त्म नहीं हुआ. 1857 में कंपनी ने न्यू लॉ पास कर दिया कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी, जो भी आएगा कंपनी की आर्मी में, हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ़ रिक्वायर्ड. जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो समुद्र के पार उसको जाना ही पड़ेगा. और जो कंपनी में जो सिपाही थे उनके, आई हैव डिस्कस्ड कि उनका वेतन जो था, उनके जो भत्ते होते थे, उनकी जो सेवा की शर्तें थी, उससे भी बहुत टफ करते चले जा रहे थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. उसके बाद हमने देखा कि जो जो सिपाही लोग काम कर रहे थे, वो अपने कंट्री साइड की भी चीज़ों को समझ रहे थे कि जो लोग गांवों में हैं वो भी बहुत परेशान हैं. बहुत सारे सिपाहियों ने तो खुद से ही, वो बेचारे किसान थे, फिर उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया सिपाही की जो जॉब है. वो अपने परिवार और गांव को छोड़कर क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को. तो किसानों को इस बात का बहुत गुस्सा भी आ रहा था. और इसकी वजह से वही लोग किसान भी थे और वही लोग सिपाही भी थे, तो जल्दी से जो इंट्रैक्शन होता था उन लोगों के बीच में, इससे जो भी चीज़ें सैनिकों के साथ होती थी वो जल्दी ही गांवों में भी फैल जाती थी. इसकी वजह भी जो था, ये एवरीवेयर द डिसकंटेनमेंट स्प्रेड easily. So this is all about the chapter, students. Thank you very much for the listening, and I'll again come with new topics like through the eyes of the people, a mutiny becomes a popular rebellion, and what and how the rebellion spreads and from Meerut to Delhi also, and how the company fights back. Thank you so much for listening.